آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے برطانوی نمائندہ خصوصی نے ملاقات کی ہے۔ ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے پاکستان عالمی اور علاقائی امور میں برطانوی کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاکستان اور برطانیہ کے مابین دو طرفہ تعلقات میں وسعت کے خواہاں ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے فیصل رضا سے۔ فیصل رضا بتائیے گا آرمی چیف نے اس ملاقات میں مزید کیا کہا؟ جی بالکل، ISPR کے مطابق برطانوی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان نائجل کیسی جو اس وقت 3 روزہ دورے پر پاکستان میں موجود ہیں، انہوں نے GS2 کا دورہ کیا اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے عام ملاقات کی۔ اس ملاقات میں باہمی دلچسپی افغانستان کی صورتحال پر جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر جو ہے وہ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان عالمی اور علاقائی امور میں برطانوی کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاکستان اور برطانیہ کے مابین تعلقات میں وسعت کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں انسانی بحران سے بچنے کے لیے عالمی کاوشیں ناگزیر ہیں۔ افغان عوام کی معاشی ترقی کے لیے مربوط عالمی نقطہ نظر ضروری ہے۔ افغانستان میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے۔ اس موقع پر برطانوی نمائندہ خصوصی نے افغان صورتحال، علاقائی استحکام اور مؤثر سرحدی انتظام کی خصوصی کاوشوں کو قابل قدر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے ہر سطح پر ٹھیک ہے، ملاقات کا تفصیلی احوال بتا رہے تھے فیصل رضا، شکریہ۔ چیئرمین رانا تنویر حسین کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس، وزیر اعظم ہاؤس سمیت 5 اداروں کی جانب سے محکمانہ آڈٹ کمیٹی کا اجلاس نہ کرنے کا جائزہ لیا گیا۔ آڈٹ حکام کے مطابق ایوان صدر، نیب، الیکشن کمیشن اور وزارت انسانی حقوق بھی شامل ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں 92 نیوز کے نمائندے اکرام ہوتی سے۔ اکرام بتائے گا اجلاس کا احوال۔ جی، اجلاس میں یہ بات اٹھائی گئی کہ جو گاڑیوں بنانے والی کمپنیاں ہیں وہ 6 لاکھ روپے کا اون لے رہی ہیں، یہ پیسہ بینک میں رکھ کر وہ منافع کما رہی ہیں اور گاڑیاں بھی لیٹ ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور گینگ پاکستان میں آ گیا ہے جو کہ اس پاکستان میں جو خوراک کی چیزیں درآمد ہوتی ہیں ان کو پاکستان میں اگنے نہیں دیتی۔ یہ جو 2 مسئلے تھے یہ نور عالم صاحب نے اور خواجہ آصف نے اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت صنعت کو بلایا جائے اور انہیں کہا جائے کہ اتنی خوراک باہر سے درآمد ہو رہی ہے تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فوڈ سیکیورٹی والوں کو بھی بلایا جائے اور پیداوار کے جو وزیر ہیں ان کو بھی بلایا جائے۔ نور عالم نے کہا کہ میں یہ معاملہ جو ہے وہ کابینہ کی کمیٹی میں بھی اٹھاؤں گا اور کابینہ کی جو آئندہ میٹنگ ہے اس میں بھی اٹھاؤں گا کہ یہ کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے کہ ملک میں جو خوراک درآمد ہو رہی ہے اس پہ پاکستان کا ڈالر بھی خرچ ہو رہا ہے اور کوئی اس کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنتا اور گاڑی والی کمپنیاں جو ہیں ان کو بھی کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ جی بہت شکریہ اکرام ہوتی، آگاہ کر رہے تھے۔ جامع مسجد تاجدار مدینہ ڈنڈی میں عرس غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کا انعقاد ہوا، جس میں اسکاٹ لینڈ بھر سے جید علماء کرام اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات کے لیے قیصر حبیب کی رپورٹ دیکھیے۔ مصیبت ٹال دینا کام میں کس کا غوث اعظم کا۔ جامع مسجد تاجدار مدینہ وکٹوریہ روڈ ڈینڈی اسکاٹ لینڈ میں علامہ سید اعجاز حسین شاہ کاظمی کی زیر نگرانی عظیم الشان سالانہ عرس غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ منعقد ہوا، جس میں اسکاٹ لینڈ بھر سے جید علماء کرام اور لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ صدارت و نقابت سید اعجاز حسین شاہ کاظمی صدر جماعت اہل سنت اسکاٹ لینڈ نے کی۔ محفل کا آغاز قاری حافظ اصغر رضوی نے تلاوت کلام پاک سے کیا۔ سید حذیفہ اعجاز، ریحان اصغر اور دیگر ثناخوانوں نے اپنے اپنے انداز میں منقبت غوثیہ اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ جب آپ کا میں کہلاتا ہوں، جب آپ کا میں کہلاتا ہوں اور در کے ٹکڑے کھاتا ہوں، جب آپ کا میں لاتا ہوں، جب آپ کا میں کہلاتا ہوں اور در کے ٹکڑے کھاتا ہوں۔ امام شیخ عمران قادر الازہری نے انگلش خطاب میں روحانی امراض کی شفا اور ذہنی سکون کے لیے روزانہ تلاوت کلام پاک اور درود پاک کے وظیفہ کو اپنانے کی تلقین کی۔ Talking about his life and some of the difficult parts he went through. We always enjoy his miracles and listening about his miracles.
but there was deep work and deep struggle that led him to the maqam that he was in. Qibla Shah Sahab before me, Amanat Shah Sahab, was speaking about Ghaus Pak's life, his family. In his teens, he decides to leave Gilan and travel to Baghdad, which was a center of education at that time. قاری علامہ مشتاق نے قرآن و سنت سے اولیاء کرام کے مقام و فضیلت پر بیان کیا۔ تو مفسرین نے یہاں پر کہا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بھی تنبیہ کی ہے کہ اس طرح کا ایمان ظاہر کرنے والوں، یہ تمہارا ایمان نہیں ہے، اور ایمان کی کسوٹی یہ ہے کہ تم سچوں کے ساتھی بن جاؤ۔ مہمان خصوصی امام حسن ربانی نے اولاد کی دینی اخلاقی تربیت، کلام اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق، عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت حصول علم اور اس کی ترویج و اشاعت کو مسلمان کے لیے لازمی قرار دیا۔ The problem is when we hear the glorious Quran and we are sure that this is the divine message, this is Holy Quran, words, kalam of Allah, kalam Allah. علامہ سید امانت حسین نے کہا کہ ولی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کر ہی دین و دنیا میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آج کی محفل جو ہے بڑی اچھی تھی، اور حضور پاک سرور کائنات کے صدقے سے غوث پاک کی محفل جو ہے منعقد ہوئی، بہت سارے لوگ آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بڑی ہی رونق لگی یہاں تاجدار مدینہ ڈنڈی میں۔ آخر میں صلاۃ والسلام کے بعد علامہ سید امانت شاہ صاحب نے خصوصی دعا کی۔ محفل کے اختتام پر حاضرین کو لنگر غوثیہ بھی پیش کیا گیا۔ برطانیہ میں دوسرے شہروں کی طرح آج جامع مسجد تاجدار مدینہ ڈنڈی اسکاٹ لینڈ میں بھی عرس غوث العظم سید عبدالقادر جیلانی کا انعقاد ہوا، جس میں کافی لوگوں نے شرکت کی، اور جس کا میسج یہی تھا کہ اولیاء اللہ سے نسبت اور رابطہ ہی آپ کو دنیا اور دنیا آخرت میں کامیابی کی دلیل ہے۔ کیسر حبیب، 92 نیوز، ڈنڈی، اسکاٹ لینڈ۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے پر ڈنمارک میں اوورسیز پاکستانی بھی بہت خوش ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کے اس اقدام کو سراہتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار تحریک منہاج القرآن ڈنمارک کی مجلس شورا کے صدر چودھری محمد اکرم جوڑا نے کیا۔ وہ برطانیہ کے شہر لیوٹن ایک عشائیے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے چودھری نثار اپنی رپورٹ میں۔ تحریک منہاج القرآن ڈنمارک کے صدر چودھری اکرم جوڑا کے اعزاز میں مقامی کمیونٹی کی طرف سے ایک عشائیے کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر چودھری اکرم جوڑا سمیت دیگر کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے کر ان کے دل جیت لیے ہیں۔ پہلی دفعہ کوئی کام ہوا ہے اوورسیز واسطے، تو یہ ووٹ کاسٹ کرنے کی جو اجازت ملی ہے نا، اس بہت ہی بہترین کام ہوا ہے۔ یہ ان کا حق ہے، انہیں ملنا چاہیے، اور ہم خوش ہیں، ہم مبارکباد دیتے ہیں عمران خان۔ جتنی بھی پہلے سیاسی جماعتیں تھیں وہ سب نے مطلب وعدے کیے ہوئے تھے، کسی نے نہیں پورا کیا۔ یہ عمران خان پی ٹی آئی ہے، انہوں نے یہ وعدہ اپنا پورا کیا، اور بڑی مشکل سے انہوں نے یہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلایا ہے، تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، بہت خوشی ہوئی ہے ہمیں۔ جناب، پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو قانون پاس ہوا ہے اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے، میں پاکستان گورنمنٹ کا اور خاص کر کے پارلیمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے 8 ملین پاکستانیوں کو جو ہے وہ رائٹ دیا ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس موقع پر چودھری امین پوٹھی، اسرار احمد راجہ، احتشام الحق قریشی، بزنس مین چودھری طارق محمود، چودھری امین پوٹھی، حاجی زبیر، کونسلر جاوید اور دیگر بھی موجود تھے۔ چودھری نثار، 92 نیوز، لیوٹن۔ پاکستانی نژاد برطانوی نوجوان باکسر حسن عظیم اور آدم عظیم نے پروفیشنل فائٹ جیت لی۔ اس موقع پر اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا۔ سلاؤ کے مقامی ریسٹورنٹ میں فتح کا جشن منایا گیا۔ تقریب کا احوال وسیم قاسمی کی رپورٹ میں۔ پل پل دل کے پاس تم رہتی ہو، جیون میٹھی پیاس یہ کہتی ہو،
पाकिस्तानी नैयाद ब्रिटिश बॉक्सर्स हसन अजीम और आदम अजीम ने वेम्बले अरीना में होने वाली प्रोफेशनल फाइट जीतकर कम्युनिटी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। बड़े भाई हसन अजीम ने हरीफ को पहले राउंड के इब्तिदाई में नॉकआउट करके अपने करियर की पहली प्रोफेशनल फाइट में फातेह होने का एजाज हासिल किया, जबकि छोटे भाई आदम अजीम ने दूसरे राउंड में नॉकआउट की बुनियाद पर अपने करियर की दूसरी फाइट में कामयाबी अपने नाम कर ली। दोनों भाइयों की फतह के जश्न में सलाओ के मुकामी रेस्टोरेंट में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बरतानिया के रहनुमाओं और मशहूर कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। हसन और आदम जब तकरीब में शिरकत के लिए आए तो कम्युनिटी मेंबरान ने दोनों भाइयों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर PTI बरतानिया के रहनुमा मोहम्मद जाहिद राजा समेत दीगर अफराद का कहना था कि दोनों भाइयों ने कम्युनिटी का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। बहुत अच्छा लगता है भाई, हमारे बच्चे जो कामयाब होते हैं उनकी कामयाबी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। मतलब है कि ये दो जो बच्चे हैं, हमने कल गए बॉक्सिंग मैच देखी है, ग्रेट, वेरी ग्रेट, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, बड़ा अच्छा किया इन्होंने। मैंने इनको देखा है जब से छोटे थे, छोटे अब बड़े हो गए हैं, लेकिन इनके माँ बाप ने इनको ना सही तरह मतलब एवरी पॉइंट पे इनको ना मतलब एजुकेशन दी है। Really proud of the boys. Congratulations to them, and they made Sal very, very proud. हसन अजीम और आदम अजीम की वालदा का कहना था कि उनके बेटे अपने खेल की बदौलत पाकिस्तान और इंग्लैंड का नाम रोशन करेंगे। हसन अजीम और आदम अजीम का कहना था कि वो इंशाअल्लाह मेहनत और लगन से वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल अपने नाम करके मुल्क व कौम का नाम रोशन करके पाकिस्तान का दौरा करेंगे। बरतानिया में काम करने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर्स की नुमाइंदा तंजीम एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन नॉर्दर्न यूरोप का सालाना डिनर मुनक्किद हुआ। डिनर में बरतानिया भर से डॉक्टर्स की फैमिलीज ने शिरकत की। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बर्मिंघम से आबिद काज़मी रिपोर्ट करेंगे। बरतानिया में 14,000 से ज़ायद पाकिस्तानी डॉक्टर्स काम करते हैं। कोरोना वायरस के दौरान फ्रंट लाइन पर काम करके अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर लोगों की जिंदगियां बचाने वाले पाकिस्तानी डॉक्टरों को दुनिया भर से खिराजे तहसीन पेश किया गया। गुज़श्ता रोज बरतानिया में काम करने वाले पाकिस्तानी डॉक्टरों की नुमाइंदा तंजीम एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन नॉर्दर्न यूरोप का सालाना डिनर मुनक्किद हुआ। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी, जबकि प्रोग्राम के दौरान सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के पैगामात भी शुरुका को सुनाए गए। which is far better than neighboring countries, far better than a number of European countries. It is because of the fact that we work with, according to the Prime Minister's request, with compassion. We decided not to have a complete lockdown. Our ulama worked with us for establishing SOPs in the mosques. I would also like to recognize Akil as a large umbrella group of doctors from the Pakistani diaspora serving in the National Health Service for more than 7 decades. इस मौके पर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की नुमाइश भी लगाई गई, जिसका हाई कमिश्नर ने विजिट करके उनकी हौसला अफजाई भी की। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ, जबकि पाकिस्तानी और बरतानिया के कौमी तराने भी चलाए गए। इस मौके पर हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा कि आप ही हमारे असल सफ़ीर हैं। आपकी वजह से आज बरतानिया में पाकिस्तान का मस्बत चेहरा उभर कर सामने आया है। इस दौरान APPNE के सदर इरफान अख्तर, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शबी अहमद और दीगर ने खिताब करते हुए हाई कमिश्नर और बरतानिया में बसने वाले तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वालों का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान स्टेज पर ब्रिटिश सिंगर तानिया वेल्स ने लाइव परफॉर्मेंस के दौरान उर्दू में पाकिस्तानी गजलें सुनाकर शुरका को खूब महसूस किया।
हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान, MP खालिद महमूद, डॉक्टर इरफान अख्तर और दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये हमारा दूसरा सालाना डिनर है, जिसके दौरान साल भर मेहनत से काम करने वाले डॉक्टर्स की हौसला अफजाई करना है। हमारे जो डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं UK में और इसी तरीके से पूरे यूरोप में, और माशाल्लाह जिस तरह का ये काम कर रहे हैं हर हवाले से, चाहे वो चैरिटी वर्क हो, चाहे वो इवन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, और ख़ास तौर पे पेंडेमिक में इनकी जो सर्विसेज हैं UK में, और उसकी तारीफ़ मेरा ख़्याल में हर लेवल पे की गई है। तो हमें बहुत खुशी है और हमें बहुत फ़ख्र है, और ये एक तरह का यूँ कह लीजिए कि एक रोल मॉडलिंग है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम अपने ने सबसे बड़ा सालाना अपना हेल्थ कन्वेंशन मुनक़्क़द किया है। इसमें हज़ारों डॉक्टर्स ने शिरकत फरमाई है। इसमें हमने CME सेशंस किए हैं, इसमें हमने सोशल इवनिंग की है। इस तकरीर में सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी ने, हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जनाब शाह महमूद कुरैशी ने, हम हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान ने शिरकत फरमाई है और हमारा हौसला बढ़ाया है और हमारी तंजीम को एंडोर्स किया है। हम इन तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। लास्ट ईयर सारा टाइम गुजर गया था लॉकडाउन के अंदर, ये पहला इवेंट है जिसमें हम दोस्त आपस में मिल सके हैं, तो पीपल हैव रियली अप्रिशिएटेड दैट। और आप देखेंगे कि पूरे मुल्क में ऊपर और नीचे से लोग आए हैं। It's an opportunity for them all to meet each other, and the best part today has been that we've also not just invited doctors, but we've had people from Pakistan who brought their products and they sold their clothes and those things and jewelry. And that was loved by the people. All these sort of privileges come with a lot of responsibility, and if Allah has blessed us with these sort of resources and this privilege that we can change and make a difference to human life, then we should actually not only take credit for that, but also give all the efforts to make sure that whatever we have got, we actually use for the benefit of humanity and to uphold our country, nation and Islam. ये हमने अपने एनुअल इवेंट किया है, इसमें अपने बाज़ार भी था, CME कन्वेंशन भी था और डिफरेंट एकेडमिक एक्टिविटीज़ हुई हैं आज पूरा दिन। तो हमने पाकिस्तानी डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन है और इसके बैनर के अंदर ये हो रहा था प्रोग्राम। 2 साल पहले इनकी जब लॉन्च हुई तो मैं वहाँ था, तो इनको 200 इनके मेंबर थे, आज 1000 से ऊपर हैं। इस तंजीम का जो फ़ायदा है कि जो और नए यहाँ डॉक्टर्स आते हैं उनकी सपोर्ट के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरीका है एक तंजीम का, जो जितने और पाकिस्तान से नए डॉक्टर आते हैं उनकी सपोर्ट के लिए भी। शुरका ने कहा कि ज़रूरत इस अमर की है कि कौम के ममारों की हौसला अफजाई की जाए, ताकि हमारे डॉक्टर्स पूरी दुनिया में अपने टैलेंट का लोहा मनवा कर मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सकें। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की 552वीं सालगिरह के मौके पर गुरुद्वारा सबा व्याना में तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें सिख मजहब, ऑस्ट्रियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान इसी पर रिपोर्ट करेंगे। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की 552वीं सालगिरह के मौका पर गुरुद्वारा सबा व्याना में बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज खुसूसी दुआओं से हुआ। गुरुद्वारा सबा के सरप्रस्त गुरदेव सिंह ने अपने इफ्तिताही कलमात में हाज़रीन शुरका को बाबा गुरु नानक की 552वीं सालगिरह की मुबारकबाद पेश और दूसरे ममालिक खुसूसी तौर पर पाकिस्तानी और ऑस्ट्रियन कम्युनिटी का उनके साथ खुशियों में शामिल होने पर शुक्रिया अदा किया। गुरुद्वारा सबा के सरप्रस्त ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि 70 साल से हम करतारपुर सियालकोट में राहदारी खोलने का मुतालबा कर रहे थे, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल राहदारी करतारपुर खोलकर सिख मजहब की दिली ख्वाहिश पूरी कर दी, जिस पर हम हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। गुरुद्वारा सभा के जनरल सेक्रेटरी गुरदीप सिंह ने भी बाबा गुरु नानक की सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने सिख मजहब के दिल करतारपुर राहदारी खोलकर जीत लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा गुलाम रसूल के कत्ल की लर्जा खेज वारदात से पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी सोगवार हो गई। गुलाम रसूल को अपने ही तकरीबन 18 साला सगे भांजे ने
छुरियां मारकर कत्ल कर दिया। गुलाम रसूल बोल्टन से अपनी मां को बहन के घर से ले जाने के लिए 15 नवंबर को लुटन आए। मां को ले जाने के मामले पर बहन और भाई के दरमियान मामूली तकरार हुई और भांजे ने मामू पर छुरियों के पेदार पे वार करके जख्मी कर दिया। गुलाम रसूल को जख्मी और तशवीशनाक हालत में कैम्ब्रिज एडोम्ब्रिक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जान पर न हो सके। गुलाम रसूल की वफात पर बरतानिया भर से बड़े पैमाने पर इजहार ताज़ियत का सिलसिला जारी है। उन्होंने सोगवार खानदानों में बेवा समेत 3 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी हैं। सफीर पाकिस्तान आफ्ताब अहमद खोखर ने ऑल पाकिस्तान प्रेस क्लब के चेयरमैन अकरम बाजवा, सदर गुलाम हुसैन नकवी और दीगर पाकिस्तानी सहाफ़ियों के एजाज़ में पाकिस्तान हाउस वियना में ज़ौरानी का एहतमाम किया। गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में 5 सितंबर को श्रीलंकन सिफारत खाना और ऑस्ट्रियन क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे इंतजाम वियना 21 डिस्ट्रिक्ट के मुकामी क्रिकेट ग्राउंड में एक रोज़ा टूर्नामेंट खेला गया था। एम्बेसी कप का फाइनल मैच श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान खेला गया। फाइनल मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंकन टीम को 10 विकेट से शिकस्त देकर पहला एम्बेसी कप जीता था। एम्बेसी क्रिकेट कप जीतने की खुशी में सफीर पाकिस्तान आफ्ताब अहमद खोखर ने अपने रिहाइशगाह पाकिस्तान हाउस में ऑस्ट्रियन नेशनल टीम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों, एम्बेसी कप टीम के कप्तान, हेड ऑफ चांसलरी लियाकत अली वड़ाइच और पाकिस्तानी कम्युनिटी की सहाफत के मैदान में शानदार कारकर्दगी और खिदमत के एतराफ में ऑल पाकिस्तान प्रेस क्लब ऑस्ट्रिया के चेयरमैन अकरम बाजवा, सदर गुलाम हुसैन नकवी और दीगर पाकिस्तानी सहाफियों को लंच पर मदऊ किया। तकरीब में कम्युनिटी अफेयर्स काउंसलर हमायूं शब्बीर जोया और सिफारत खाना वियना के स्टाफ मेंबरान भी शरीक थे। मेंबर कौमी असम्बली और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रियाज फतियाना गुज़िस्ता दिनों ग्लासगो आए। उन्होंने स्कॉटलैंड के मशहूर शायरा और सिंगर शमशाद वहीद गनी के बेटे की शादी के वलीमे में भी खुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे ग्लासगो से शाहिद मीर। पीटीआई स्कॉटलैंड के ज़ेरे एहतमाम कानून और इंसाफ की कमेटी के चेयरमैन रियाज फतियाना के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया गया। इसमें पार्टी के ओहदेदारों ने शिरकत की। रियाज फतियाना ने खिताब करते हुए कहा कि अगर किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी को कोई भी शिकायत हो तो वो फौरन OPC या वज़ीर आज़म के पोर्टल में दर्ज करवाए। तकरीब से पीटीआई स्कॉटलैंड के सदर मियाँ अली अहमद सूफी, सीनियर नायब सदर अनिस राना और दीगर ने भी खिताब किया। मेंबर कौमी असम्बली ने शमशाद गनी के बेटे आमिर की शादी के वलीमे में भी खुसूसी शिरकत की। दुल्हन के वालिदैन और नए जोड़े को शादी की मुबारकबाद दी। शादी की तकरीब में सियासी और समाजी कारोबारी शख्सियात के अलावा मीडिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। बुलेटिन में हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। मिस्र की कम से 2 सर जुड़ी बहनों को ऑपरेशन के जरिए अलग करने के लिए सऊदी अरब मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी फर्मान शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के शाही फरमान पर बच्चियों का ऑपरेशन किया जाएगा। मिस्र की कम से 2 बहनें सारा और सलमा के सर पैदाइशी तौर पर जुड़े हुए हैं, जिनको एयर एम्बुलेंस के जरिए सऊदी अरब मुंतकिल किया गया, जिसका फरमान सऊदी फर्मान शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने जारी किया था। दारुल हुकूमत रियाज में वाक़ई किंग अब्दुल्ला नेशनल अस्पताल में माहिर डॉक्टर्स की मेडिकल टीम जायज़ा लेगी कि बच्चों का ऑपरेशन मुमकिन है या नहीं। सऊदी अरब में इससे कबल भी पैदाइशी तौर पर सर और जिस्म के दीगर आज़ा से जुड़े हुए बच्चों के कामयाब ऑपरेशन किए जा चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस दोबारा फैलने लगा। जर्मनी में कोरोना केसेस की शरह का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। यूरोप समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में कोरोना की पाबंदियों के खिलाफ मुजाहरे भी शुरू हो गए। दुनिया में कोरोना वायरस की नई लहर, केसेस दोबारा बढ़ने से खतरे की घंटी बज गई। जर्मनी में 45,000 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आ गए। एक दिन में मजीद 309 अमवात के बाद मजमूई तादाद 1 लाख के करीब हो गई। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद करंटीना में चले गए। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वाले बेल्जियम के वज़ीर आज़म को भी करंटीना करना पड़ गया। अमेरिका ने जर्मनी और डेनमार्क के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। बेल्जियम, क्रोएशिया, हंगरी और नीदरलैंड के लिए पहले ही अमरीकी एडवाइजरी जारी हो चुकी है। यूरोप में कोरोना की नई पाबंदियों के खिलाफ मुजाहिरे शुरू हो गए। बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस में शहरियों की पुलिस के साथ झड़पें हुई। ऑस्ट्रिया में 29 लाख अफराद के गैर जरूरी घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। ऑस्ट्रिया में कोरोना वैक्सीन लाजमी करार देने पर एहतजाज किया गया। ब्रसेल्स में वैक्सीन के बगैर रेस्टोरेंट और बार्स में दाखिला बंद कर दिया गया। न्यूजीलैंड में भी एहतजाज किया गया। शहरियों ने इमलाक को नुकसान पहुँचाया। इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। बाखबर देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।